तो जी अब दिख रहा है। They do not compete with the materialists, but devotees of the Lord rise above such competitions. They do not compete with the materialist because they are on the path back to Godhead, where life is eternal and blissful. Such transcendentalists are non envious and pure in heart. In the material world, everyone is envious of everyone else, and therefore there is a competition. But the transcendental devotees of the Lord are not only free from material envy, but are well wishers to everyone, and they strive to establish a competition-less society with God in the center. The contemporary socialist conception of a competition-less society is artificial because in the socialist state there is a competition for the post of director. From the point of view of Vedas or from the point of view of common human activities, sense gratification is a basis of material life. There are three paths mentioned in the Vedas. One involves furtive activities to gain promotion to better planets. Another involves worshipping different demigods for promotion to the planets of the demigods. And another involves realizing absolute truth or his impersonal future and becoming one with him. The impersonal aspect of the absolute truth is not the highest. Above the impersonal feature is the Paramatma feature, and above this is the personal feature of the absolute truth or Bhagwan. So Srimad Bhagavatam gives information about the absolute truth in his personal feature. It is higher than impersonalist literatures and higher than the Gyan Kanda division of the Vedas. It is even higher than the Karma Kanda division and even higher than the Upasana Kanda division because it recommends the worship of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, Lord Sri Krishna. In the Karma Kanda, there is a competition to reach heavenly planets for better sense gratification. And there is similar competition in the Gyan Kanda and Upasana Kanda. The Srimad Bhagavatam is superior to all of these because it aims at the supreme truth, which is the substance or the root of all categories. From Srimad Bhagavatam, one can come to know the substance as well as the categories. The substance is the absolute truth, the supreme Lord, and all emanations are relative forms of energy. Nothing is apart from the substance, but at the same time, the energies are different from the substance. This competition is not contradictory. Srimad Bhagavatam explicitly promulgates this simultaneously one and different philosophy of the Vedanta Sutra, which begins with the Janmadhyasya Sutra. This knowledge that the energy of the Lord is simultaneously one with and different from the Lord is an answer to the mental speculator attempt to establish the energy of the absolute. When this knowledge is factually understood, one sees conceptions of monism and dualism to be imperfect. Development of this transcendental consciousness, grounded in the conception of simultaneously one and different, leads one immediately to the stage of freedom from the threefold miseries. What are threefold miseries? Those miseries which arises from the mind and body, those miseries inflicted by other living beings, and those miseries arising from natural catastrophes over which one has no control. Means Adi Bhautik, Adi Daivik, and Adi Atmik. Srimad Bhagavatam begins with the surrender of the devotee unto the absolute person. The devotee is fully aware that he is one with the absolute, and at the same time in the eternal position of servant to the absolute. In the material conception, one falsely thinks himself the lord of all the service, and therefore he is always troubled by the threefold miseries of the life. But as soon as one comes to know his real position as transcendental servant, he at once becomes free from all miseries. As long as the living entity is trying to master material nature, there is no possibility of his becoming servant of the Supreme. Service to the Lord is rendered in pure consciousness of one's spiritual identity. By service, one is immediately
freed from material encumbrances. Over and above this, Srimad Bhagavatam is a personal commentation on the Vedanta Sutra by Sri Vyasadeva. It was written in the maturity of his spiritual life through the mercy of Narada. Sri Vyasadeva is the authorized incarnation of Narayana, the personality of Godhead. Therefore, there is no question as to his authority. He is the author of all other Vedic literatures, yet he recommends the study of the Srimad Bhagavatam above all others. In other Puranas, there are different methods set forth by which one can worship the demigods, but in the Bhagavatam only the Supreme Lord is mentioned. Haribol. The Supreme Lord is a total body, and the demigods are the different parts of that body. Consequently, by worshipping the Supreme Lord, one does not need to worship the demigods. I'm repeating again. Consequently, by worshipping the Supreme Lord, one does not need to worship the demigods. The Supreme Lord becomes fixed in the heart of the devotee immediately. Lord Chaitanya Mahaprabhu has recommended Srimad Bhagavatam as the spotless Purana and distinguishes it from other Puranas. The proper method for receiving this transcendental message is to hear submissively. A challenging attitude cannot help one realize this transcendental message. One particular word is used herein for proper guidance. This word is Susrushu. One must be anxious to hear this transcendental message. The desire to sincerely hear is the first qualification. Again, I'm repeating. Please note down. The desire to sincerely hear is first qualification. What is qualification to hear Bhagavatam? Desire to sincerely hear. First qualification to receive the transcendental message. Less fortunate persons are not at all interested in hearing this Srimad Bhagavatam. The process is simple, but the application is difficult. Unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversation, but when invited to attend a meeting of the devotees to hear Srimad Bhagavatam, they suddenly become reluctant. Sometimes professional readers of the Bhagavatam immediately plunge into the confidential topics of the pastimes of the Supreme Lord, which they seemingly interpret as sex literature. Srimad Bhagavatam is meant to be heard from the beginning. Those who are fit to assimilate this work are mentioned in this sloka. One becomes qualified to hear Srimad Bhagavatam after many pious deeds. Haribol, congratulations to all of you. Already you have done a lot of pious activities in past. That's why you are here to hear Bhagavatam. The intelligent person with thoughtful discretion can be assured by the great sage Vyasdev and that he can realize the Supreme Personality directly by hearing Srimad Bhagavatam. Without undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas, one can be lifted immediately to the position of Paramahansa simply by agreeing to receive this message. Again repeating, without undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas, one can be lifted immediately to the position of Paramahansa simply by agreeing to receive this message. Reborn. So, quite long purport but very meaningful purport. Let us discuss. हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे और कुछ सार और शिक्षा प्राप्त लेने का कोशिश करेंगे इससे। जो कुछ भी हमने सुना है सीखा है अपने आचार्यों द्वारा गुरुजनों द्वारा उसी बातों को मैं यहाँ पे प्रकट करने की कोशिश करूंगा आप सबकी प्रसन्नता के लिए और हमारी शुद्धिकरण के लिए। ये भागवत का दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक हमारा क्या था? जन्माद्यस्य अतो अन्वयात् अर्थेषु अविज्ञा स्वराट। इसमें भगवान पे मेडिटेट कर रहे हैं। भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान क्रिएशन करने वाले हैं, भगवान जो है मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सो इंडिपेंडेंट है। इस प्रकार से उनके बारे में बताया गया और फिर उनको मेडिटेट कर रहे हैं। अब यहाँ से बता रहे हैं कि धर्म के बारे में, धर्म प्रोजिता कैटवो, जो चीटिंग रिलीजन है, जो धोखे वाला रिलीजन है, उसको हमें क्या करना है? छोड़ना है। और जो रियल रिलीजन है उसको हमें अपनाना है।
ठीक है। तो इसके इसमें क्या बताया जा रहा है, हमारे रूपा जी ने काफी क्लियर तरीके से सारा कुछ इसमें पॉइंट बाय पॉइंट बता दिए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने दिया है डेफिनेशन किसका, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन, मनुष्य और पशु। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है वो बताया गया यहाँ पे। ठीक है। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, तो पशु भी जो कार्य करते हैं वो कार्य मनुष्य भी करते हैं। चार चीजें कॉमन है। महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम हि एतं पशुभिर्नृणाम् धर्मो हि एकाशेष अधिक अशेषा धर्मेण हीना पशुभिर समाना। चार चीजें कॉमन क्या क्या है, आहार, निद्रा, भय एंड मैथुना। खाना खाना, ठीक है, सोना, डरना या रक्षा करने के लिए कुछ इंतजाम करना, और मैथुन सेक्स लाइफ। ये चार चीजें जो है कॉमन है मनुष्य में भी और पशु में भी। तो अंतर क्या है, धर्मो ही एक अशेष अधिको अशेषा। और एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, धर्म, रिलीजन। रिलीजन जो है मनुष्य के लिए बना है धर्म, और पशुओं के लिए नहीं है। अगर हम लोग भी धर्म में हीना हो जाएंगे, धर्म को पालन नहीं करेंगे, तो हम लोग भी क्या कहलाएंगे, पशु कहलाएंगे, एनिमल कहलाएंगे। दो पाँव वाला एनिमल, दो पाँव वाला जानवर, दो पाँव वाला पशु। तो हमारे हाथ में है, हम क्या चाहते हैं, हम पशु रहना चाहते हैं या फिर भगवान का शुद्ध भक्त बने और यहाँ से जाएं, संसार से, भौतिक जगत से निकले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, धर्म को पालन करना पड़ेगा। अब धर्म का पालन करना है तो धर्म कौन सा पालन करें, बहुत सारा चीटिंग रिलीजन भी है, तो है हमारे सामने। तो उसको हमें त्यागना है, कैटअप धर्म को त्यागना है, जो रियल धर्म है उसको अपनाना है। तो रियल धर्म क्या है, भागवत धर्म, जो कि आपको इस भव बंधन से छुटकारा दिलाने में बहुत ही क्वालिफाइड है, सफिशिएंट है। बाकी चीजें जो है आपको बंध बांध कर ही रखेगा। वैसे मनुष्य जीवन का क्या है यहाँ पे बातें, चार चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस सबके जीवन में आता है। सबसे पहले वो धर्म के आधार पर कोई कार्य करता है, कार्य करता है और पहले अर्थ कमाता है। धर्म, अर्थ, काम, फिर और काम, उसकी इच्छाएं जो होती है पूरा करता है। और उसके बाद लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है तो मोक्ष के लिए कोशिश करता है। मोक्ष के लिए कोशिश करने के लिए फिर क्या करेगा वो, यहाँ वहां से जा करके ढूंढेगा, ये वाला पाथ अपना लेते हैं, वो वाला पाथ अपना लेते हैं। बट वो सारे पाथ जो है उसको फिर फंसा कर रखता है। राइट। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि हम कर्म कांड करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हम ज्ञान योगा करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हम ये निराकार में जाकर मर्ज हो जाएंगे। ये सब चीजें जो हैं अल्टीमेट खुशी नहीं दे पाएगा आपको। थोड़ा दिन के लिए सुख देगा बट बाद में आपको दुखी देगा ये सब चीजें। अगर आप सच में रियल हैप्पीनेस चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण। और इस पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे थे अभी, कि अगर कोई भागवत श्रवण करने में रुचि ले लिया है, भागवत श्रवण करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले ही सारा पायस एक्टिविटीज, पायस कार्य वो कर चुका है, पायस एक्टिविटी वो कर चुका है। बाकी निराकारवादी लोग मेडिटेट करते रहे, अपना जो करना है, उनको मुक्ति चाहिए, लाइट में मर्ज होना है, मर्ज होने दीजिए। या कर्म कांड, लोग जो कर्म कांड की दृष्टि से कर्म करते हैं, उपासना कांड करते हैं, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सबको क्या करना है, भक्ति योग, भक्ति योग। भक्ति योग में प्रहलाद महाराज जो बताते हैं नवदा भक्ति का प्रोसेस, उसी को फॉलो करना है,
उसमें अगर 9 के 9 पूरा फॉलो नहीं भी होता है, अगर एक भी फॉलो अगर हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इन सब में से हम सबसे मुख्य चीज हम लोग क्या करते हैं जनरली डेली? श्रवणम और कीर्तनम। कीर्तनम मतलब कथा करना भी कीर्तनम में आ जाएगा, चैंटिंग करना भी कीर्तनम में आ जाएगा। प्रचार करता है वो भी कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करके सिर्फ रखना नहीं अपने पास, कीर्तन भी करना है आपको, मतलब और दूसरों को बताना भी है, प्रचार करना है। भागवत धर्म ऐसा है जितना आप दूसरे को बताएंगे उतना ही आपके पास और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। भौतिक जीवन में क्या होता है, कोई चीज किसी को दे दोगे आप तो वो आपके पास कम हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 40 रुपया है, उसमें से 10 रुपया आप किसी को दे दिए तो आपके पास 30 बचेगा, राइट। लेकिन भागवत धर्म में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। जितना लोगों को आप बांटोगे उतना ही आपके पास और बढ़ेगा। ये तिजोरी है, ट्रेजर है। ट्रेजर जो है सोने चांदी का, हीरे का, आपको भरते जाएगा। ठीक है, तो कंजूसी नहीं करना है कि मैं क्यों बताऊं, भक्त बन जाएगा तो, सुधर जाएगा तो, हमसे अच्छा बन जाएगा तो, ये सब सोचना हमारे लिए मूर्खता हो सकती है। दिल खोल करके आप दान दीजिए। ये शास्त्र का दान, ज्ञान दान, प्रचार करना बहुत बड़ा दान है। क्यों बहुत बड़ा दान है? आप बोले प्रभु जी जो कंबल बांटते हैं वो क्या नहीं करते हैं अच्छा काम? नहीं, वो भी अच्छा करते हैं काम, ऐसा नहीं करते हैं। बट कंपेरेटिवली उनसे ज्यादा अच्छा काम कौन है? भागवत धर्म का प्रचार करना, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना। लोगों को जो खोए हुए हैं, मेला में कोई बच्चा खो जाता है तो उस बच्चे को उसके माता पिता से मिलवा देना, वो ज्यादा लाभदायक होगा, ना कि उसको बस चॉकलेट दे दो, टॉफी दे दो और बस तुम यहीं रहो, सड़ते रहो यहीं पे। टेम्परली थोड़ा सा खुशी देगा बच्चे को, बट बाद में फिर होना शुरू करेगा। जैसे ही टॉफी खत्म हुआ, चॉकलेट खत्म हुआ, फिर से रोएगा। इसीलिए है हम सबको क्या करना चाहिए, भगवान की गुणों का, नाम का, रूप का, लीला का प्रचार भर भर के करना चाहिए, ताकि बद्ध जीव जो संसार में फंसे हुए हैं निकले यहाँ से। सब लोग सुनना चाहते हैं। आज यूट्यूब पे देखा जाए तो बहुत तरीके से कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट एक कमी नहीं है, हर लोग सुनना चाहते हैं। फालतू फालतू के लिए जो लोग डाल भी देते हैं यूट्यूब पे और लोग बहुत चाव से इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और इसको टाइम वेस्ट करते हैं अपना। तो उसके बदले में है कि उनको अगर हम हरिनाम दें, भागवत का ज्ञान दें, तो शायद उनका जीवन बदल सकता है। इसलिए आप सब लोग प्रचार कीजिए, शर्माइए मत कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहना काम है, कहने दीजिए, आप अपना कार्य करते जाइए। रियल धर्म का प्रचार करेंगे तब जाके कट्टर धर्म का विनाश होगा, नहीं तो कट्टर धर्म ऊपर उठते जाएगा, उठते जाएगा। चीटिंग प्रोपेंसिटी लोगों का कलयुग में ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे भगवान कहते हैं ना, हाँ कहीं मतलब जहाँ कहीं कृष्ण रहेंगे वहां माया नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है? कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, जहाँ है, जहाँ कृष्ण, जहाँ कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, जहाँ जहाँ कृष्ण तहाँ माया क्या है, जहाँ सूर्य होंगे वहां पे अंधकार का कोई रास्ता नहीं, कोई वहां पे जगह नहीं वहां पे। जैसे सूर्य का प्रकाश जैसे ही आ जाता है तो वहां पे आपको माया रहेगा नहीं, अंधकार रहेगा नहीं, अपने आप हट जाएगा। तो प्रचार करने की जरूरत है। देखिए माया का प्रचार हर दिन होता है, हर क्षण होता है, हमेशा तलाश रहती है कब इसको गिराया जाए। वैसे ही हम सबको भी भागवत धर्म का प्रचार बढ़ चढ़ करके जितना ज्यादा हो सके करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है इसमें कि संसार में, भौतिक जगत में
कैसे हम लोग फंसे हुए हैं, क्या क्या दुख होता है हमारा। तीन प्रकार का मिजरीज बताया गया था इसमें। थ्री फोल्ड मिजरीज। एक वो जो अपने शरीर द्वारा मिलता है, उसे क्या कहते हैं, आधि आत्मिक। हमारे बॉडी, मन, माइंड के द्वारा जो कष्ट मिलता है उसे आधि आत्मिक बोलते हैं। पेट दर्द हो जाना, हेडेक हो जाना, या फिर कोई बड़ी सीवियर डिजीज हो जाना, कैंसर, दिस दैट, बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो ये सब हमारे बॉडी द्वारा जो कष्ट मिलता है, आदि आत्मिक। एंड आदि भौतिक क्या होता है, जो दूसरे जीवों द्वारा दिया गया कष्ट हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक पहलगांव में। वो भौतिक भौतिक आ गया वो, भौतिक लिविंग दूसरे जीवों द्वारा। या कोई किसी को शेर ने अटैक कर दिया, या सो या पड़ोसी से झगड़ा हो गया, सब क्या है, आदि भौतिक में आता है। आदि दैविक मतलब क्या होता है, जो नेचर के द्वारा दिया गया कष्ट हो। तत्काल अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो अभी बहुत जगह बादल फटा, क्लाउड ब्रस्ट हुआ हर जगह, या कहीं भूकंप आता है, कहीं सुनामी आता है। ये सब क्या है, आदि दैविक मिजरी में आता है। ये तीन प्रकार का मिजरी तो हमें सबको बारी बारी से कभी कुछ न कुछ तो मिलता ही है इस भौतिक जगत में। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सबको कभी न कभी तो आता ही है चीजें, राइट। तो कैसे इसे छुटकारा मिलेगा हमें, इस सारी मिजरी से कैसे कैसे मिलेगा। जब हम अपने अपने जीवन में श्रीमद् भागवतम को अपनाएंगे, और श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब हम भगवान के चरणों में शरणागत हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे, तब ये सारी चीजें हमें अटैक करना बंद कर देगा। क्यों अटैक करना बंद कर देगा, भगवान गीता में कहते हैं ना, दैवी ही ऐसा दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृति जो है मेरी ही शक्ति है, बट दुष्कर है इसको पार कर पाना, ये माया जो है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया है, हाँ, मेरी शक्ति है, लेकिन उसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रभु कोई उपाय नहीं है क्या, कोई तो उपाय बताइए। हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है, माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जब आप मेरे शरण में आ जाओगे, सरेंडर करोगे, तब जाकर के इस माया से, इस दुख से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक से आप निकल सकते हो। नहीं तो चीटिंग रिलीजन में फंसे रहोगे, तो फिर आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 83 लाख के योनियों चक्कर में घूमते रहना पड़ेगा, बार 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 बार। कभी पशु की योनि में, कभी पेड़ पौधे की योनि में, कभी कीड़े मकोड़े की योनि में। ठीक है, तो अगर आप, हम सब चाहते हैं कि ये हमारा आखिरी जीवन हो, आखिरी बर्थ हो इस धरती पे भौतिक जगत में, तो सिंसियरली, सीरियसली भागवत को स्वीकार करना चाहिए, भागवत को डेली पढ़ना चाहिए, भागवत की शिक्षाओं को हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, आगे से बताया जा रहा है कि इस भौतिक कंसेप्शन में जो अपने आप को क्या सोचते हैं, भगवान मानते हैं बहुत लोग तो, अपने आप को दास नहीं मान करके क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को, पोजीशन को जान जाएंगे, आइडेंटिटी को पहचान जाएंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, कैसे प्राप्त हो सकता है, तो हम खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हमारा आइडेंटिटी क्या है, हम लोग पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है। ममैवांस जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही अंश हो, मेरे ही अंश हैं सारे जीवात्मा। ममैवांस जीवलोके जीवभूत सनातनः,
लेकिन क्या कर रहे हैं, चूंकि हमसे लड़ाई कर लिए हैं, पंगा कर लिए हैं कि हमें भी बॉस बनना है, हमें भी ईश्वर बनना है। वाई ओनली यू विल एंजॉय। आप ही क्यों इतना एंजॉय करोगे अकेले अकेले, मैं भी तो एंजॉयर हूँ। इस मेंटलिटी के कारण मुझे यहाँ पे आना पड़ा भौतिक जगत में। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं बॉस बनने का, मालिक बनने का, एंजॉयर बनने का। हर लोग चाहता है, इवन माताएं भी चाहते हैं कि हम रोल करेंगे, घर के मालिक हम रहेंगे, पति देव मेरा बात मानना चाहिए। प्रभु सोचते हैं नहीं, मेरी वाइफ मेरी बात मानना चाहिए। दोनों में क्लैश होता है। कोई सबॉर्डिनेट बनना चाहता ही नहीं है, आज तो सब बॉस बनना चाहता है। भगवान कह रहे हैं मनः इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रगलिंग। क्या? तड़प रहे हैं, परेशान हैं, किससे? छह इंद्रियों से। अब छह इंद्रियां क्या क्या है? तो पांच तो ज्ञान इंद्रियां हो गए, और एक हमारे मन, माइंड। तो इसके कारण से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इससे ऊपर उठे, स्ट्रगल को कम करें, बंद करें, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, भागवत का श्रवण करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेंटलिटी को छोड़ दीजिए कि हम मटेरियल वर्ल्ड का बॉस बन के रहेंगे। हिरण्यकशिपु की मेंटलिटी के नहीं रहना चाहिए। प्रहलाद का मेंटलिटी के रहेंगे तो काफी हद तक हेल्प होगा। राजा तो प्रहलाद ही बने, बट हम्बल वे में बने, विनम्र होकर बने। जैसे रावण भी राजा था, लंका का राजा था। रावण के बाद विभीषण भी राजा बना, लेकिन किस उद्देश्य से बना, क्या उसका वो गोल था, वो चेंज कर देता है। रावण घमंडी हो गया कि मैं सब तीनों लोक का विजेता हूँ, और मेरे से ऊपर कोई है नहीं। भगवान ने विनाश कर दिया उसका। लेकिन उसके भाई को वहां पर स्थापित कर दिया, विभीषण जी को, जो भगवान का भक्त थे, अपने आप को दास मानते थे, सेवक मानते थे। हमें भी केयर टेकर बोलते हैं। जैसे इस्कॉन में भक्त लोग किसी वस्त्र पर लिखते हैं ICO, इन केयर ऑफ। अपने आप को भुक्ता नहीं मानना चाहिए। भुक्ता राम एक तपसाम सर्व लोका महेश्वरम। भुक्ता राम तो कृष्ण ही है, हम सब भुक्ता राम नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए कि लैपटॉप मेरा है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, पति मेरे हैं। ये सब कहना बड़ा मूर्खता वाली बात है। मेरे मेरे, मी मैं, बकरी की तरह मैं नहीं करना है। हैं? क्या करना है कि ये सब भगवान की शक्तियां हैं, भगवान का बनाया हुआ वस्तु है, जो मुझे दिया गया है केयर करने के लिए, भगवान के सेवा में यूज करने के लिए। जैसे मान लो कोई पति है, तो अपनी पत्नी को भी भगवान का एक सेवक समझ करके, सर्वेंट समझ करके, भक्त समझ करके उनको भगवान की सेवा में लगवाना चाहिए। इस प्रकार के मान लो पत्नी अगर भक्त है, पति भक्त नहीं है, तो कोशिश करना चाहिए ऐसा नहीं कि मेरा पति है, उसको सोचना चाहिए भगवान का ये दास है, लेकिन ये भूला हुआ है, अपना आइडेंटिटी को भूला हुआ है। कैसे इसको हम भगवान के सेवा में लगाएं, कैसे इनको हम भगवान के सेवा में एंगेज करें। तो हर दूसरे को इस तरह से देखेंगे तो झगड़ा कभी होगा ही नहीं। जहां कहीं देखते हैं कि मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, तुम मेरे हो, वहां पे फिर पंगा होना शुरू हो जाता है। ठीक है? आगे बता रहे हैं इसमें, श्रीमद् भागवतम किसका है, कहाँ से कौन लिखा है इसको? वेदांत सूत्र कॉमेंटेशन है। वेदांत सूत्र जो है सारे वेदा का जो है कमेंट्री लिखा गया था, सूत्र लिखा गया था, फॉर्मूला टाइप का। फिर उसके ऊपर जो कमेंटेशन दिया गया है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम। कौन दिए हैं? व्यास देव ही दिए हैं। आगे हम भागवत में पढ़ेंगे कौन से स्टेज में भागवत आया। पहले व्यास देव जी सब कुछ लिख दिए थे, सारे वेदास पुराणास सब लिख दिए थे। इसके लिखने के बावजूद भी वो खुश नहीं थे, आनंद में नहीं थे। तो अपना दुख को व्यक्त किए किनसे? अपने गुरुदेव नारद मुनि से। नारद मुनि जी बताइए मेरा क्या, हालांकि वो स्वयं भगवान का इनकारनेशन है व्यास देव, पर फिर भी बिन गुरु ज्ञान कहाँ। गुरु स्वीकार करते हैं सब कोई। हमारे राम जी आए, गुरु स्वीकार किए, भगवान कृष्ण आए, गुरु स्वीकार किए। तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब से ज्ञान नहीं मिलेगा, या कहीं इंटरनेट से गूगल पे जाकर सर्च कर ले, गूगल बाबा से सीख लेंगे, नहीं होगा। लिविंग गुरु होना चाहिए। लिविंग गुरु होना चाहिए, साक्षात गुरु होना चाहिए, जिनसे कि आप कुछ ज्ञान अर्जन कर सके। कैसे अर्जन करना है? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया
उपादेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। या उसके बाद परिप्रश्न सेवया। क्वेश्चंस तो लोग करते हैं, चैलेंजिंग स्पिरिट में करते हैं, चैलेंज देते हैं। तो चैलेंज तरीके से क्वेश्चन करने से कोई लाभ नहीं है। हमें पहले, सबसे पहले सेवा करना पड़ेगा। परिप्रश्न सेवया। जब सेवा करोगे फिर क्वेश्चन पूछोगे, तो फिर आपको वो सारा वो ज्ञान दे देंगे जो उनके हृदय में है। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम। आपको सारा ज्ञान देंगे। ज्ञानी ना तत्वदर्शिना, क्योंकि तत्वदर्शी होते हैं जो है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, गुरु को स्वीकार करना है। गुरु हमारे जीवन में जरूरी है। इस प्रकार से हम जिम जाते हैं, वहाँ पे जिम का ट्रेनर होता है। इस प्रकार से हम कार सीखते हैं, स्कूटर सीखते हैं, जो वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल होता है। स्विमिंग सीखते हैं, तो स्विमिंग सीखने के लिए भी हमें स्विमिंग ट्रेनर होता है। तो हर जगह ट्रेनर चाहिए। तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रेनर नहीं चाहिए क्या? आध्यात्मिक जीवन में नहीं चाहिए गुरु? नहीं साहब, हमें तो गूगल बाबा है हमारे लिए। गूगल बाबा से काम नहीं होने वाला। ये हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, बहुत सारे सबको शिक्षा दे रहे हैं गुरु को स्वीकार करनी है। और गुरु किस तरह स्वीकार करना है वो भी ध्यान देना। जैसे चीटिंग रिलीजन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, वैसे चीटिंग गुरु भी अवेलेबल है मार्केट में। सस्ते सस्ते गुरु मिल जाएंगे आपको, सस्ते मतलब तुमको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस महीने महीने क्या करो, मेरे पास डोनेशन भेज दिया करो। और ये 4-5 का मंत्रा का सेट दिया हुआ है। तुम महामृत्युंजय मंत्र कर लो, तुम काली मंत्र कर लो, तुम साई बाबा के मंत्र कर लो। तुमको जो इच्छा हो मंत्र चूज कर लो, उसको जपना शुरू कर दो। कोई चार नियम, कोई चार नियम नहीं है, कुछ नहीं फॉलो करना है। खूब भोगो, खूब इंजॉय करो, जो मन करता है खाओ पियो मौज मस्ती करो। जिसके साथ मन करता है उसका संबंध बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइफ मिला एंजॉय करने के लिए। बट मैं तुम शिष्य रहना। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरा शिष्य रहना। ऐसे ऐसे चीटिंग गुरु के साथ दूर से प्रणाम कीजिए। गोपाल जी कहते हैं, इफ यू वांट टू गेट चीटेड, चीटर्स आर अवेलेबल। चीटर्स आर अवेलेबल इन मार्केट। डोंट बिकम फूल। हमें मूर्ख नहीं बनना है। एक प्रमाणिक गुरु को समझाना चाहिए, जो कि गुरु परंपरा में आते हों। चार परंपरा जो प्रमाणिक होता है हमारा, जैसे में ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, इस्कॉन बिलोंग करता है। और दूसरा होता है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय जिसका आचार्य हुए रामानुजाचार्य। और दूसरा होता है रुद्र संप्रदाय, इसका आचार्य हुए विष्णु स्वामी। एंड देन कुमार संप्रदाय, जिनका प्रवक्ता हुए और आगे बढ़ा रहे हैं स्वामी निम्बरकाचार्य। ये सारे चार संप्रदाय जो हैं, प्रमाणित माना जाता है। इन सारे संप्रदाय में अगर कोई गुरु को स्वीकार करते हैं तब ठीक है। इसके अलावा कहीं और करते हैं तो सही बोल रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या है, सोचना चाहिए कि व्यास देव जी अब गुरु से बातें किए, चर्चा किए, तो उनको मालूम चला कि तुमने सब कुछ दे दिया है। लोग तो ऑलरेडी काम इच्छा में फंसे हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षा में फंसे हुए हैं। उसके लिए तुमने भर भर के लिख दिया है, लेकिन इसे छुटकारा कैसे मिलेगा वो तुमने लिखा ही नहीं है। आपने स्पेसिफिकली भगवान के बारे में गुणगान नहीं किया है, कृष्ण का गुणगान नहीं किया। भर भर के थोड़ा बहुत किया है, हर जगह हर जगह कहीं ना कहीं मिलेगा कृष्ण का गुणगान। पर स्पेसिफिकली भगवान की लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में, भक्तों के साथ आदान प्रदान के बारे में नहीं लिखा है। तुम वो लिखो तब तुम खुश हो जाओगे। तो इस बात को मान करके व्यास देव जी ने मैच्योरिटी में ये ग्रंथ को लिखे। और श्रीमद् भागवतम क्या होता है? स्पॉटलेस ग्रंथ। कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं है। ये अमलम पुराणम है, पका हुआ फल है, पका हुआ फल है। चैतन्य महाप्रभु में से कंफर्म करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला ना। क्या बोला? आराधयो भगवान ब्रजेस्तनिया ततधाम श्री वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं यमलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्र दाहना परः। महाप्रभु कह रहे श्रीमद् भागवत में जो अमलम,
प्रेम परमार्थो महान, प्रेम दे सकता है आपको ये। इस प्रकार से भागवत जो है हमें अपनाना चाहिए। भागवत को नित्यम सेवा करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं कि हम साल में एक बार खोल लेंगे। स्पेशली अभी कार्तिक का महीना आ रहा है, हम सब लोग संकल्प ले सकते हैं कि भागवत का डेली कम से कम एक श्लोका पढ़ेंगे। एक श्लोका भागवत का डेली पढ़िए। समझ में आए चाहे नहीं आए, पढ़ लीजिए बस एक बार, उतना से लाभ हो जाएगा आपको। ठीक है। ये सारे इसमें बातें बताया जा रहा है, प्रपट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि भागवतम है तो कैसे हमें रिसीव करना है, मैं बता दिया आपको ऑलरेडी। हियर इट सबमिसिवली। सबमिसिवली इस तरीके से सुनना चाहिए, मतलब सरेंडर के भाव से। इच्छा होनी चाहिए कि हमें कुछ सीखना है, ना कि चैलेंज करना है। अरे प्रभु आपको कुछ आता होता नहीं है, बताओ मुझे ये बात है कहाँ लिखा हुआ है। कुछ लोग जानबूझ के क्वेश्चन करते हैं जस्ट फॉर टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है? तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, रियली में सीखने की दृष्टि से अच्छे सेवा भाव होते हुए इंक्वायरी करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। और शुश्रूषु होना चाहिए। शुश्रूषु मतलब वन शुड बी एंशियस टू हियर ट्रांसलेटल मैसेज। काम धाम छोड़ करके आ जाना है क्लास में। क्लास का टाइम होने से पहले आ जाना है। ऐसा नहीं कि अभी तो मंगलाचरण होगा, अभी तो कीर्तन होगा तो उसके बाद जाएंगे भागवत श्रवण करने के लिए। या अभी श्लोका रिसाइटेशन कर रहे होंगे, अभी पढ़ पढ़ रहे होंगे, अभी अगर क्या करेंगे। नहीं, जब से शुरू होता है क्लास उसी समय से क्लास में बैठ जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन प्रभुपाद जी क्या बताए थे। पहला क्वालिफिकेशन क्या है भागवत श्रवण करने का, सिंसियरली हियर। एक होता है हियर करना, है सिंसियरली हियर करना। हियर मतलब हाँ थोड़ा बहुत ऊपर से कुछ 5% 10% काम चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक होता है अटेंटिवली हियर करना, नोट्स बनाना, कोई डाउट हो तो क्वेश्चंस करना, इसको होता है अटेंटिव हियरिंग। लेकिन जो कम भाग्यशाली लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, भागवत में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं सुनने के लिए, बल्कि यहाँ वहाँ का फालतू मैगजीन, जो फिक्शन मैगजीन्स वगैरह होते हैं, गाने होते हैं, ये सब सुनने में ज्यादा आनंद आता है उनको। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे फालतू में। तो उनसे अच्छा है कि हम सब उसमें टाइम बिता ना बिता, बल्कि भागवत का श्रवण करें। या फिर कुछ प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, उनसे भी हमें नहीं सुनना चाहिए। प्रोफेशनल रिसाइटर मतलब समझ में क्या होता है, जो पैसा लेकर के भागवत कथा करता हो। हमारे इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो 1 घंटे का भागवत कथा करने का लाख लाख रुपया चार्ज करते हैं। आएंगे स्टेज पे, आंसू बहाएंगे, कितना लग रहा प्रेम है, भाव है, और सीधे टॉपिक क्या लेंगे, रासलीला, रास पंच अध्याय। हो सकता है कभी कभी बना भी देंगे, तुम कृष्णा बन जाओ बाकी सब गोपियां बन जाएंगे, रासलीला होगा भाई यहाँ पे। तो वैसे लोगों से अवॉइड करें सुनने के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, अभी भगवान का नाम थोड़ा भी कान में जाएगा ही तो पूरा नाम लाभ नहीं मिलेगा। आपके हृदय के शुद्धिकरण, चित्त की मार्जन वो नहीं होने वाला उतना। हमें क्या करना है, भक्तों से, भगवान के भक्त हैं उनसे श्रवण करना है। उनसे श्रवण करना है, खास करके गुरु परंपरा में जो आते हैं उनसे श्रवण करना है। आप बोलेंगे प्रभु जी बाकी लोग भी तो कथा सीख ही कर रहे हैं ना, भगवान के बारे में बता रहे हैं ना। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि दूध जो है बाहर से लगता है सेम ही है, लेकिन एक दूध है जो कि सर्प द्वारा डस लिया गया हो, पॉइजन मिला दिया गया हो, वो पूरा का पूरा दूध क्या होता है, जहर हो जाता है। उसको पियोगे तो मरोगे। बाहर से दिखता है कि दूध ही है, बट है दूध नहीं, वो जहर है। ठीक है, इसलिए सावधान, साधु सावधान। ऐसा नहीं यूट्यूब पे जो मिले उसी पे हम सुन रहे हैं। ठीक है। और इस भागवत में एक श्लोक का यहाँ पे क्या है, जो मैंने बताया शुरू में ही कि अगर आप क्वालिफाइड हो गए इस भागवत सुनने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले ही सारा पायस एक्टिविटी कर चुके हैं। इवन प्रभुपाद जी कहीं ये भी कहते हैं कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस डायरेक्टली आ गया है
भक्ति में कोई आ गया, भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड स्वीकार कर लिया है, हरिनाम का जप करना शुरू कर दिया है, चार लिंग प्रण करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि पिछले जीवन में उसने बहुत कुछ शुभ कार्य किया और पायस कार्य किया हुआ है, तभी आया है वो। आने के बाद आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, यार मैंने वो तो काम किया ही नहीं, मैंने योगा ज्वाइन नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं किया, मैंने स्ट्रांग योगा नहीं किया, मैंने तपस्या नहीं किया जाता। उसकी चिंता नहीं करना है, जो लोग कर रहे हैं करने दीजिए। आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप यहाँ पे पहले ही आ गए। वो लोग उस रास्ते से गुजरते हुए बाद में आएंगे, यहीं पे आना तो इधर ही है। भक्ति होगा ये सुप्रीम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सभी शास्त्र बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं। भक्ति योग में जब तक नहीं आएंगे रस नहीं मिलने वाला है। जैसे कोई निराकारवादी होते हैं, जाते हैं मर्ज हो जाते हैं लाइट में, ब्रह्मन ज्योति में मर्ज हो जाएंगे वहां पे। कब तक रहोगे भाई? कब तक रहोगे? अगर आपको एक कमरे में बंद करके रखा जाए अकेले, तो कब तक रहोगे? वो तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में बोर हो जाओगे, बोले भाई जल्दी निकालो मुझे यहाँ से। कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। आनंद चाहिए, रस चाहिए, तो वो कहाँ मिलेगा? भगवान का पर्सनल फॉर्म पे वर्शिप करने से, भगवान को भक्ति करने से आनंद में रहते हैं भक्त लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? भागवत का श्रवण करना है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है कि हमें भागवत श्रवण करने का मौका मिला है। इसका मतलब है पहले ही सारा कार्य हम कर चुके हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी क्वेश्चन कमेंट किसी भक्तों का? या कुछ जो कुछ भी सीखा आप लोगों ने ऐसे क्लास में, वो भी रिपीट कर सकते हैं। यस, कारुण्य प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने इतना अच्छा हमें समझाया धर्म के बारे में। प्रभु जी, एक मेरा उसमें थोड़ा मोर डिस्क्रिप्शन में जाता है डिटेल में, कि यहाँ परमात्मा फीचर और ये भगवान का, जैसे परमात्मा फीचर ब्रह्म, और उसके बारे में डिफ्रेंसिएशन लास्ट में किया गया था, आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दें। तो तीन फीचर जो है भगवान का है, और जिससे हम भगवान को लोग समझ पाते हैं। कोई गलत नहीं है, तीनों सही है, बट एक होता है इनकम्प्लीटनेस, एक होता है कंप्लीटनेस। भगवत गीता के जब पढ़ोगे आप दूसरा अध्याय का, आई थिंक पहला या दूसरा श्लोका में ही प्रभुपाद जी परपट में एक्सप्लेन किए हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल देकर कि ये है कि जिस प्रकार से सूर्य होता है, एक होता है सूर्य का प्लानेट, एक होते हैं सूर्य का देवता विवस्वान, और एक होता है सूर्य का प्रकाश। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश को हम देख पाते हैं, सूर्य की प्लैनेट को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का लाइट इतना तेज होता है, खास करके दोपहर का लाइट। दोपहर का अगर सन को बोलूं मैं आपको कि 12 बजे का सन को देखो, आप देख ही नहीं पाओगे, आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाएंगी, आंखों से आंसू नहीं लगेगा। ये बहुत ज्यादा लाइट होता है। तो कोई व्यक्ति को कह दे कि बस जो कुछ भी है ये लाइट ही है, क्योंकि लाइट हमारे घर में आ रहा है विंडो के द्वारा, खिड़की के द्वारा, तो लाइट ही सब कुछ है, और कुछ नहीं होता है। तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि बिना किसी सोर्स का लाइट कैसे आएगा भाई? जब हमारे घर में ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट से प्रकाश आ रहा है, तो ट्यूबलाइट तो है, एग्जिस्ट करता है ना, उसका आकार है, रूप है। ऐसा नहीं कि रूम में लाइट अपने आप आ रहा है, कहीं बल्ब जल रहा हो तो बल्ब सोर्स है उसका। उसी प्रकार से इम्पर्सनल जो है भगवान का फीचर, वो कुछ और नहीं, भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, वो तेज सूर्य के तेज से कई गुना अधिक है, जिसको लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ है। उसके आगे वो जा नहीं पाते हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने एक उपनिषद दिया हम सबको, ईशो उपनिषद। उसमें लास्ट का 15वां श्लोक में ही प्रे करते हैं कि हे भगवान, अपना ये इफल्जेंस को हटाइए, अपने इस लाइट को हटाइए, ताकि मैं आपको देख सकूं। हम अपने बल पे तो नहीं देख पाएंगे भगवान को, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर, तब भगवान को हम देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। तो ये लाइट जो है इम्पर्सनल भगवान का शरीर का से निकला हुआ प्रकाश है।
फिर जब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मालूम चलेगा बहुत सा प्लानेट है वहां पे, बहुत बड़ा प्लानेट है जो कि आग उसका आग वाग उसमें रहे देखने को मिलेगा आपको, या लोग भी रहते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे ही आगे, वहाँ पे लोग भी हैं। और उसमें सबसे राजा कौन है, उस प्लानेट का राजा कौन है, विवस्वान जो पर्सन है। इसी प्रकार से भगवान जो श्याम सुंदर के रूप में है, बांसुरी बजाते हुए, त्रिभंग ललिता श्याम सुंदर मोर पंखधारी, वो वहां पे है गोलोक वृंदावन में। उनके शरीर से प्रकाश निकलता है जो कि इम्पर्सनल है, और भगवान जो सबके हृदय में है वो परमात्मा के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं। जो फ्यूचर जब प्लानिट जो है परमात्मा के रूप में भी हम समझ सकते हैं सूर्य का एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी और देते समझाने के लिए इस कंसेप्ट को हम सबको, कि जैसे मान लो कोई बड़ा सा पहाड़ दिख रहा होगा आपको, तो दूर से वो पर्वत बहुत ही आपको स्मॉल स्मॉल दिख रहा होगा पर्वत, या उसके ऊपर जो पेड़ पौधे लगे हुए होंगे वो आपको बिल्कुल घास की तरह लगते होंगे, छोटा छोटा लगता होगा घास की तरह। तो कोई दूर से देखेगा तो बोलेगा बस यहाँ पे ग्रीनरी है, कुछ और नहीं है। जैसे जैसे नजदीक आते रहेगा तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है। और हमने सोचा कि जैसे बस कुछ ग्रास है, घास है, यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ हैं। और पास जाएगा तो देखेगा अरे नहीं, यहाँ तो कुछ गैया भी चल रही है, कुछ किसान लोग खेती भी कर रहे हैं, कुछ लोग भी यहाँ पे हैं। तो ये स्टेजेस हैं। तो जो निराकारवादी होते हैं वो लाइट पे ही मेडिटेट करते रहते हैं और पर्सनल में ही मर्ज होना चाहते हैं, लेकिन बाद में उनको आना पड़ता है फिर से। लेकिन जो भक्ति योगी होते हैं, कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, भगवान का पर्सनल फीचर पे मेडिटेट करते हैं, पर्सनल फीचर को सर्व करते हैं। और जैसा कि भगवान गीता में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जैसा आपका भाव रहेगा अंत काल में, वैसे आपको शरीर मिलेगा। एक और श्लोक आता है, यम यम वाप्य संभावम त्यजन्त्यंत कलेवरम आम तम यति कौशला दुर्भाव भावित। ठीक है। तो जब हम भगवान का चिंतन करेंगे भगवान के पास जाएंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे देवी देवताओं के पास जाएंगे। इस पर में एक और चीज था यहाँ पे, मैं भूल गया बोलना उसको, कि किस प्रकार से हमें कोई कृष्ण का अगर भक्ति करता है तो कहीं और किसी भी भक्ति भक्ति करने का सेवा करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ है परपट ने प्रभुपाद ने दिया है, हम सबको पढ़िएगा इसको आराम से फिर से। तो देवी देवताएं क्या है, भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के जड़ में अगर पानी दोगे आप तो हर जगह पानी पहुंच जाएगा, टहनी में, पत्ते में, फूल में, फल में, सब जगह पानी मिलेगा उसको, सब खुश रहेंगे, आनंद रहेगा। या फिर आप समझने के लिए बोल सकते हैं, अगर पेट को हम खाना सप्लाई करेंगे तो हमारे सारे इंद्रिया, सारे बॉडी का पार्ट संतुष्ट रहेगा, हेल्दी रहेगा। अब कोई पेट को खाना नहीं देगा, खाना हम रसगुल्ला को हाथ में लेकर रखे रहेंगे, एंजॉय करोगे क्या, नहीं करोगे, रसगुल्ला सड़ जाएगा वैसे रखे रखे। तो रियली में रसगुल्ला को एंजॉय करना चाहते हो और उसको टेस्ट करना चाहते हो, उसको शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, हाथ सबको पूरे बॉडी पार्ट को मिले, तो मुंह के द्वारा पेट में डालना ही पड़ेगा। पेट में जाएगा तो सब संतुष्ट है। उसी प्रकार से हमारे लिए पेट और पेट का जड़ कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान कृष्ण ठाकुर जी, राधा कृष्ण। तो उनके शरण में जाएंगे, उनको जब पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, तो सभी देवी देवता खुश हो जाएंगे, कोई नाराज नहीं होता है। ऐसा नहीं सब नाराज हो जाएंगे, नहीं नहीं मेरे को क्यों नहीं किया। हम देख सकते हैं लीला हुआ भी था, गोवर्धन लीला में इंद्र थोड़ा सा कुपित हुए थे, भगवान ने ठीक कर दिया उनको। ठीक है। बल्कि बाकी लोग खुश होते हैं, हमारे शिव जी तो और खुश होते हैं। शिव जी तो अपने भक्तों को भेजते हैं, जाओ भाई, जाके उनके पास जाओ, नाम जपो। सनातन गोस्वामी के पास अपने भक्त को भेजे थे, उनके भक्त ने तपस्या किया, शिव जी का भक्त, और शिव जी से बोले मुझे सबसे कीमती वस्तु दीजिए। बोले अच्छा, सबसे कीमती वस्तु चाहिए, ठीक है, वृंदावन जाओ, वहां पे एक बाबा है सनातन गोस्वामी, उनसे मांगो, उनके पास रखा हुआ है सबसे कीमती वस्तु। तो व्यक्ति खुशी खुशी आया, बोला कि मुझे हमारे आराध्य देव शिव जी ने भेजा है आपके पास, आपके पास सबसे कीमती वस्तु है, हमें दीजिए। अच्छा, सबसे कीमती वस्तु चाहिए, ठीक है, वो जाओ वहां पे जो डस्टबिन रखा हुआ है ना, कचरे का डब्बा, उसके अंदर रखा हुआ है। अरे वाह, वहां रखा हुआ है, ठीक है, गया और निकाल लिया, क्या निकाला, पारस का मणि।
पारस मनी क्या होता है, टच स्टोन की तरह होता है, जहां कहीं टच करोगे जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बड़ा खुश हुआ। वाह, थैंक यू सो मच शिव जी, थैंक यू, आपने कितना दयालु किया, क्या दयावान है आप, हमें तो सबसे अच्छी कीमती वस्तु दे दिया। शिव जी रास्ते में आ रहे होते हैं, मिलते हैं कि और बताओ सब ठीक है, अरे मनोकामना पूर्ण हो गया, मिल गया सबसे कीमती वस्तु? बोले हाँ मिल गया। शिव जी पूछते हैं अच्छा बताओ ये कहाँ रखा हुआ था? बोले ये कचरे के डब्बा में रखा हुआ था। बोले कि अगर सबसे कीमती वस्तु अगर ये है तो कचरे का डब्बा में क्या कर रहा था? अब उसका दिमाग खुला, अरे हाँ, हमने तो सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। सबसे कीमती वस्तु अगर पारस मनी है तो फिर ये कचरे के डब्बा में क्यों रखा गया था? शिव जी बोले तुम मूर्ख हो, तुम्हें चीटिंग किया गया है, फिर से जाओ उनके पास, बोलो नहीं आपने चीटिंग किया है मेरे साथ, ये सबसे कीमती वस्तु दीजिए, हमें ये नहीं चाहिए छोड़ा छोड़ा। फिर से आया व्यक्ति वो सनातन गोस्वामी के पास, फिर से बोलता है सनातन गोस्वामी जी, नहीं आपके पास कुछ और कीमती वस्तु है, इससे भी कीमती वस्तु है, हमें वो दीजिए। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि सच में चाहिए सबसे कीमती वस्तु? बोलो। हाँ चाहिए, तो एक शर्त है। क्या शर्त है? इस पारस मणि को ले जाओ और यमुना में फेंक दो। अब बेचारा का दिमाग घूम गया भाई, कहीं वो भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला तो ये भी चला जाएगा। पर दुखी मन से आज्ञा का थोड़ा पालन करते हुए चलो बोल रहे हैं तो कर देते हैं, गया यमुना में फेंक दिया। वापस आया तो क्या दिए उनको सनातन गोस्वामी? विड बैग उठाए, जप माला दिए, बोले ये लो जप माला, और बोलो सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सबसे कीमती वस्तु जो है शिव जी की कृपा से मिला उस व्यक्ति को। शिव जी को पता था, शिव जी दो तरह की कृपा करते हैं, सकपट कृपा और कपट कृपा, है ना। तो एक होता है धन दौलत दे देना, वो असली कृपा नहीं होता उनका। एक होता है उनका असली कृपा जो कि भगवान कृष्ण का नाम देते हैं, भगवान शिव खुद ही नाम जपते हैं, राम राम राम। इसलिए हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि कहीं ये इस्कॉन वाले जान तो खाली बोलते नहीं कि कृष्णा वाले हैं तो कृष्णा कृष्णा ही बोलते हैं, नहीं हम नहीं बोलते, पूरा संसार बोलता है, सभी देवी देवता बोलते हैं, सब बोलते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसी भागवत में सुनेंगे सूत गोस्वामी कंफर्म करते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम मिते मृदयन्ति युगे युगे। ये सारी कलाएं जो है ठीक है, एते च कंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वहां पे ये नहीं बोला गया कि विष्णु और बोलते हैं और भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया, वहां पे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इवन विष्णु का भी नाम अपने लिए क्लियर नहीं, तो कंफ्यूज होता है लोग, क्योंकि विष्णु जी कौन है? भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन है, उनसे प्रकट हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं नारायण से कृष्ण आए हैं, नहीं यहाँ पे हमारे चैतन्य चरितामृत में क्लियरली मेंशन है, कृष्ण कनक गोस्वामी क्लियरली बताए हैं कि कृष्णा इज द सोर्स फॉर एवरीवन। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ? थैंक यू सो मच प्रभुपाद की जॉय, टाइम हो गया अभी। आप लोग अगले क्लास में हम लोग टेक्स्ट नंबर 3 लेंगे और इसको रिवाइज करके रहिएगा।